आज के समय कपड़ा जो है वो मशीन से बनाया जाता है, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें हार्वेस्टिंग, क्लीन अप एंड वोवन ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बट फर्स्ट और सेकंड क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि शिप जो है वो हमें वूल देती है, बट शिप का कौन सा पार्ट जो है वो आपको वूल प्रोवाइड करता है and how that wool is converted into woolen yarn or woolen thread which you buy from the market। जो मार्केट से आप वुल को बाय करते हो या जो सिल्क क्लोथ्स को आप बाय करते हो, क्या वो सिल्क जो है वो एज इट इज हमें एनिमल से मिलता है? आज हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो जानेंगे। सो आई एम डॉक्टर ललिता from Hari Science and Maths Academy, and the new chapter of biology is animal fibers, in which we are going to study about the fibers which we get from the animal. Mainly two types of fibers which we are going to study in this chapter. One is wool and another one is silk. As the chapter name contains two terms, first one is animal and second one is fiber. We all know more about the animals as we discuss so many chapters of biology, but the new term that come across in this chapter name is fiber. What is fiber? Fiber can be anything that is long, जो लंबा हो, narrow means पतला हो, and flexible. It can be obtained from living thing as well as non-living things. अब सोचोगे कि नॉन लिविंग थिंग्स से तो हमने फाइबर कभी सुना नहीं, लिविंग थिंग्स का तो हमने फाइबर सुना है, बट today's I am going to tell you how the non-living thing contribute in the fiber. Now, animal fiber is the fiber that is obtained from animals. Like silk is obtained from silkworm, as you already learned this from the class 2nd, I think so. Wool is obtained from sheep, and the plant fibers are those fibers which are obtained from the plants. Example is jute, coconut fiber, etc. But on the basis of origin, these fibers are classified into two main categories. First one is the natural fiber and second one is the artificial fiber. Natural fiber are those fibers which are obtained from natural resources like plants, animals and minerals. And artificial fibers are those fibers which are synthesized from the chemical substance, जो केमिकल सब्सटेंस से सिंथेसाइज किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नेचुरल फाइबर्स and artificial fiber in detail. Two fibers which I told you, one is natural fiber and another one is the artificial fiber. Natural fiber के बारे में जैसे मैंने बताया, ये नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है. So this is further classified into three categories. First one is the vegetable fiber, second one is the animal fiber and third one is the mineral fiber. वेजिटेबल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जिनको प्लांट सोर्स, जिसका सोर्स जो है वो क्या है, प्लांट है, या हम ये कह सकते हैं दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. एग्जांपल इज कॉटन, जूट, कॉयर एक्सेट्रा. नाउ एनिमल फाइबर के बारे में बात करें तो एनिमल फाइबर वो फाइबर है जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है. These fibers are obtained from animal sources like wool, जिसको हम obtain करते हैं किससे, शिप से, गोट से एंड रैबिट से. ये एनिमल फाइबर जो होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है. प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है. एनिमल फाइबर्स आर वुल एंड सिल्क, and this wool is obtained from sheep, as you already studied this, goat and rabbit. goat और rabbit शायद आपने पढ़ा ना हो कि wool जो है वो goat और rabbit से भी obtain किया जाता है. Next natural fiber is the mineral fiber. Mineral fiber are those fiber which are obtained from minerals. Only one fiber is there which is mineral fiber, that is asbestos. Next fiber that we are going to talk about is artificial fiber. आर्टिफिशियल फाइबर को ह्यूमन मेड फाइबर भी कहा जाता है. अब ह्यूमन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल है, तो मींस आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, नकली. तो इट मींस दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड नेचुरली. वो नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता, वो ह्यूमन जो है वो विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स
वो उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, किससे, फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। सो देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर, वो नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होता है। और ये आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है, इनका बेस मींस किस चीज से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, सो द बेस ऑफ दीज फाइबर्स इज पेट्रोलियम। एग्जांपल इज rayon, nylon and polyester. Now in this chapter we are going to discuss about the details of wool and silk, how these wool and silk are obtained from the animals and are converted into the threads or fibers. Now first we are going to talk about the wool. Wool, many animals are present on the earth which yield wool. Example is such as sheep, goat, rabbit, yak and camel. In detail we are going to discuss these animals after this. These wool yielding animals, जो जिन एनिमल से हमें वुल मिलता है उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं। हेयर ग्रोथ जो होती है उनकी वो ज्यादा होती है और हेयर्स ही बेसिकली यूज होते हैं वुल को प्रिपेयर करने के लिए। Thick growth of hair is the main feature of these animals as these hairs trap the air and air is a bad conductor of heat. Bad conductor of heat है, इसी वजह से इन hairs में से air जो है वो easily pass on नहीं हो पाती। That's why the body of these animals are warm during the cold season or during the winter. What is the properties of wool? First property is it is annually renewable fiber, means एक एनिमल जो है वो सीजन में एक ही बार जो है वो वूल प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज हाई वाटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट, वूल के अंदर जो है वो क्या होता है, ज्यादा वाटर का कंटेंट होता है और हमारे पास ज्यादा नाइट्रोजन होती है। That's why which resist fire and does not melt, जिसकी वजह से वो फायर को रेजिस्ट करता है और वो मेल्ट डाउन भी नहीं होता, ड्रिप भी नहीं होता, इवन वुल को बर्न करने से बैड फ्यूम्स जो हैं वो भी एमिट नहीं होते। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट हैम्पर्स फाइबर क्वालिटी। फाइबर क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है अगर हम एक वुलन क्लॉथ को या वूल को बहुत देर तक धूप में अंदर, मतलब लॉन्ग एक्सपोजर अगर हम उसको सनलाइट का प्रोवाइड करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज गुड रेजिस्टेंस टू एसिड्स एंड अ पुअर रेजिस्टेंस टू एल्कलीज। एल्कलीज आर बेसिकली द बेस। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट एसिड एंड बेसिस, go with the video of acid, bases and salt chapter. Next property of wool is it is soft to touch and has a good drape. क्या होता है, सॉफ्ट है टच करने में और एक बॉडी हगिंग जो होता है वो मटेरियल होता है, जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज इट ड्राइज मच फास्टर, दैट्स व्हाई दिस क्वालिटी मेक्स द wool to use in winter. Now next we are going to discuss about the wool yielding animals, कि हमें wool किस किस एनिमल से मिलता है उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन द wool yielding animals, first one is the sheep which you already studied from second class, मतलब सेकेंड क्लास से आप ये लर्न करते आ रहे हो कि वूल जो है हमें वो किससे मिलता है, शीप से मिलता है। द पिक्चर ऑफ द शीप इज शोन ऑन द बोर्ड, उसके ऊपर जो आपको एक कवरिंग दिख रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी कवरिंग दिख रही है, दैट इज नोन एज फ्लीसी कवरिंग। उसको क्या कहा जाता है, फ्लीसी कवरिंग कहा जाता है एंड दैट इज नोन एज फ्लीस। जो कवरिंग है उस पे जो है आपका एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फ्लीस, उसको क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। ये फ्लीस जो है ये एनुअली शेवन ऑफ किया जाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि हमारी वूल की जो डिमांड है, नीड है, वो पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि शिप की एक ही ब्रीड जो है वो अवेलेबल है, इंडिया में बहुत सारी शिप्स की ब्रीड जो है वो अवेलेबल है और इनको लोग पालते हैं ताकि वूल जो है वो क्या हो सके, हमारे पास जनरेट हो सके। नाउ द नेक्स्ट वूल यील्डिंग एनिमल इज द कश्मीरी गोट। इन दिस Kashmiri is a fine soft fiber that is obtained from the undercoat of Kashmiri goats. ठीक है, जो कश्मीरी गोट के अंडर कोट से ऑब्टेन किया जाता है सॉफ्ट और फाइन फाइबर, दैट इज नोन एज कश्मीरी।
These type of goats are found in the mountain regions, mainly in the China and the Tibet, and these Kashmiri is woven into fine shawls, and that shawl is commonly known as पश्मीना शॉल्स. उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? पश्मीना शॉल के नाम से फेमस है. जो द पिक्चर ऑफ द कश्मीरी गोट इज शोन ऑन द राइट साइड. द थर्ड वूल यील्डिंग एनिमल इज अंगोरा रैबिट. अंगोरा रैबिट से जो वूल प्राप्त होती है उसको अंगोरा वूल के नाम से जाना जाता है. जनरली इट इज बेसिकली द सॉफ्ट व्हाइट हेयर फाइबर्स. जो अंगोरा रैबिट के हेयर्स होते हैं दे आर लॉन्ग and stiff, and this wool is famous for its softness, fluffiness, its thin fibers and silky texture, and mainly this wool is used to make the sweaters. And the picture of the Angora rabbit is shown on the right hand side of the board. Next is Angora goat. Angora goat is देखो अंगोरा गोट से जो वूल मिलती है उस वूल को मोहेर वूल के नाम से फेमस है. दैट वूल, and this mohair wool is durable and lustrous, and its specialty or feature is it remains warm during the colder season and it remains cool during the summer season. Next is this Angora goat is mainly found in the hilly regions of India, that is mainly in J&K, and the picture of Angora goat is shown on the board. Next is yak. Yaks are found in Tibet and Ladakh mainly, and the coat of hair covering the body of yak consists of two types of hair. The outer hairs are long and coarse, while the undercoat means जो नीचे की तरफ hairs होते हैं इनके, they are of soft and silky wool. So two types of hairs are found. The upper hair or outer hair are long and coarse hairs, and the undercoat are soft and silky wool. These are the mainly found in hilly regions like Tibet and Ladakh, and the natural color of the hair is black or brown color. And the picture of the yak is shown on the right hand side of the board. Next wool yielding animal is camel. On the camel body, there are also two types of hair are present. One is the coarse hair and another one is the fine hair. Coarse hair is the outer hair, while the fine hair is the undercoat. And both these hair makes the fleece of the camel. And the picture of the camel is shown on the right hand side of the board. This type of camel is also seen in 2026 Republic Day Parade. It is considered a healthy natural product. Along with these animals which I discussed so far, there are two more animals which are also yielding the wool. They are alpaca and llama, and they are generally found in the South America. Next topic is sheep farming. Hair of sheep composed of two types of fibers. Okay. First one is the coarse beard hair, that is also known as cam, and another one is the soft underhair. Soft underhairs are smooth and soft, and they are seen close to the skin of the sheep, while the coarse beard hair are rough and they are above seen over the underhair. Underhair जो है वो स्किन के पास दिखाई देते हैं, और जो कोर्स बियर्ड हेयर हैं ये क्या होते हैं? आपके जो सॉफ्ट अंडर हेयर हैं उसके अबव होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सारी शिप्स जो हैं वो ये दो तरीके के फाइबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. बट जनरली not all the ships, but few ships are there which generate only, which produce or which are having only the soft hair. In that case, the selective breeding method is used. इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड में क्या होता है? पेरेंट्स जो हैं दे आर चूजन वेरी केयरफुली, ताकि जो न्यू ब्रीड या न्यू यंग वंस जो पैदा हो उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो पेरेंट्स की. तो उस केस में जो है ऐसी शिप को जो है वो ब्रीड किया जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के केस में जिनके सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. तो and the fodder of the ships are generally they are eating dry fodder or grasses and leaves.
Sometimes they are given the mixture of different peas, grains such as maize and millets, sorghum, sorghum जिसको बोलते हैं हम जवार हिंदी में, and minerals such as calcium salts and oil cakes. They are helpful for their health. Now, we are going to discuss how these hairs which we obtain from different wool yielding animals is converted into the fiber. So the next topic is processing of wool. There are 5 steps that are involved in the processing of wool. The first one is shearing. Shearing is the process of collecting the hair of a sheep along with the uppermost thin layer of the dead skin. Shearing का मतलब क्या होता है कि hairs को, जो sheep की body के ऊपर hairs हैं, उनको collect करना, उसकी जो स्किन की अपर मोस्ट लेयर है दैट इज द डेड स्किन, उस डेड स्किन के साथ में उन हेयर्स को कलेक्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग. शेयरिंग के लिए जनरली जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज बेसिकली लाइक योर शेविंग मशीन, जो बार्बर यूज करता है. ठीक है, दैट इज द यूज. अब डेड स्किन जो है वो रिमूव की है अलोंग विद द हेयर, तो स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं. इसीलिए जो हमारे पास शॉर्न शेप होता है जिसकी हमने शेयरिंग की है, उसके ऊपर इमीडिएटली एंटीसेप्टिक जो है वो अप्लाई किया जाता है ताकि वो स्किन इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. शिप के जो हेयर्स हैं जनरली दे आर शेयर्ड वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार उसको शेयर करते हैं, बिकॉज, और वो भी अर्ली समर के टाइम पे, बिकॉज ताकि जो गर्मी उसके हेयर्स के अंदर कॉट अप है या है वो क्या हो जाए, एक तो रिमूव हो जाए, और दूसरा जब तक विंटर सीजन, जब तक नेक्स्ट विंटर सीजन आएगा तो उस टाइम तक उसके शिप के हेयर्स ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुके होंगे, ग्रो हो चुके होंगे, सो दैट शिप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड एनवायरमेंट. उस कोल्ड एनवायरमेंट से उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्कोरिंग. स्कोरिंग क्या होता है? अब जो देखो हेयर्स का जो कोट है दैट इज बेसिकली नोन एज फ्लीस. ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बट ये फ्लीस बिल्कुल क्लीन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है. फ्लीस को उसमें क्या होगी, डर्ट होगी और डस्ट होगी. ठीक है, तो इस डर्ट एंड डस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज द वॉशिंग ऑफ फ्लीस टू क्लीन इट फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट इज नोन एज स्कोरिंग. उसको क्या कहा जाता है, स्कोरिंग कहा जाता है. बट इसको क्लीन कैसे किया जाता है? इसको क्लीन करने के लिए जो ये हेयर्स ऑब्टेन हुए हैं इनको वाटर टैंक के अंदर क्या कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है, जिससे कि डर्ट और डस्ट जो है वो रिमूव हो जाए. दिस स्कोरिंग इज डन बाय क्लीनिंग द फ्लीस इन टैंक फिल्ड विद वाटर. Nowadays, this scoring process is done with the help of the machines, and the picture of both is shown on the sideways of the board. Now, the next process is during the process of shearing and scoring, the few fleeces get damaged. Now, this next step is sorting and grading. Now, those fleeces which get damaged, they are carefully observed and removed from the heap of the fleece. जो फ्लीस का ढेर लगा है उसमें से जो आप डैमेज्ड फ्लीस को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है और उसको उस फ्लीस के ढेर में से बाहर निकाला जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग. उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं. डैमेज्ड फ्लीस को रिमूव करना फ्रॉम द हीप ऑफ फ्लीसेस. नाउ अब वो हीप ऑफ फ्लीस है, उसमें अलग अलग वेराइटी है फ्लीसेस की. So, sorted, this heap of fleece is sorted into different categories according to the length of the hair, length of the texture, length and color. And this process is known as grading. Grading basically क्या होता है, fineness of the wool. Fineness is also known as the grading of the wool or wool grade. Depending upon the grading, the fleece are categorized into two. First one is the fine wool and second one is the rough or coarser wool. जो फाइन वूल होती है, अब फाइन जो है, कोई चीज जो है वो फाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइसिंग जो है वो हाई होगी. सो द फाइन वूल इज वेरी हाई इन प्राइसिंग एंड इट इज यूज्ड इन द वूलन टेक्सटाइल्स. दे are light in weight, while the rough or coarser wool
is having less price and they are used in making sweaters and carpet. This fine wool, as we know that in many of the wool yielding animals there are two types of fibers or two types of hair. One is the coarser hair and another one is the fine hair. So this fine wool is obtained from the fine hair, while this rough or coarser wool is obtained from the coarse hairs. Now the next step is carding. Carding में क्या होता है कि वूल को ब्रश किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग से पहले। ब्रश करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हेयर्स को जैसे हम कॉम्ब करते हैं, सेम वे है वूल को ब्रश किया जाएगा। ब्रश करने से होगा क्या कि ये जो है हमारे पास वूल में कोई टेंगल्ड हेयर्स हैं, ठीक है, या फिर उनको टेंगल्ड हेयर्स को रिमूव करने के लिए या फिर टेंगल्ड हेयर्स को स्ट्रेटन करने के लिए फाइबर्स को ये यूज की जाती है। एंड इट इज डन, किसकी हेल्प से डन की जाती है, ये मशीन की हेल्प से भी डन की जाती है, स्ट्रेटन मशीन के हिसाब से। स्ट्रेटन मशीन के अंदर क्या होते हैं, मेटल के टीथ्स होते हैं। जैसे आपकी कॉम में डिफरेंट टीथ्स हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम। तो ऐसे ही मेटल स्ट्रेटन मशीन के अंदर ये मेटल के टीथ्स होते हैं, जिससे ये टेंगल्ड हेयर्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। देयर आर ऑल्सो टेंगल्ड फाइबर्स के अलावा भी उसमें क्या होता है, एक डाउनी फाइबर्स होता है जिसको बर्स के नाम से जाना जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन स्ट्रेटन दीज बर्स और रिमूविंग दीज बर्स। एंड this processed hair is once again scored, means they are once again dipped in the tank of water and then dried. And this whole process, ये पूरा जो process है इसको क्या कहा जाता है, carding कहा जाता है। Now the next step is dyeing, spinning and weave. Dyeing का मतलब क्या होता है, जब किसी जैसे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को आपको कोई और कलर से ऑब्टेन करना है तो दैट इज डाइंग। तो यहां पर भी वही चीज है, प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू फाइबर्स, दैट इज नोन एज डाइंग। These color are added with the help of the dyes or the chemical substances, and after the coloring of this fiber they are straightened and combed, जिससे क्या होगा, वो फिर से टेंगल्ड फाइबर जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेटन हो जाता है। देन उसके बाद इन जो स्ट्रेटन करने के बाद और कॉम्ब करने के बाद जो आपके पास थ्रेड आता है या फाइबर जो आता है, दे आर स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म अ थिन थ्रेड। थिन थ्रेड फॉर्म करने के लिए उसको यूज किया जाता है। थिन थ्रेड को यार्न भी कहा जाता है। एंड यार्न को जब एक कंबाइन करते हैं, जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। कभी आपने कोई धागा घर पर लेकर के देखना, उस धागे के अंदर बहुत सारे फाइन जो है वो आपके यार्न होते हैं, ठीक है। और जब आप उसको सेपरेट आउट करोगे तो किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, किसी में अगर धागा जो है वो आपका मोटा है तो उस केस में आपको, जिसको आप धागे की रील कह देते हो, ठीक है, जो घर में मम्मी यूज करती है आपके, तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करना कभी, तो दे आर कंबाइंड और जॉइंड टुगेदर। जो एक सिंगल धागा स्ट्रैंड निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज यार्न, उसको क्या कहा जाता है, यार्न कहा जाता है। उनको ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। अब जो वुलन है, वुल, आपने अगर वुल का धागा कभी देखा हो तो उसमें भी सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, यार्न्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट these long strands of woolen are used to weave sweaters. स्वेटर्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे स्ट्रैंड्स जो यहाँ स्पिनिंग के बाद आएंगे वो आपके सारे लॉन्ग ही स्ट्रैंड्स होंगे, वो शॉर्ट स्ट्रैंड्स भी हो सकते हैं। जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं उनको तो स्वेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है, वाइल जो शॉर्टर स्ट्रैंड्स हैं उनको अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कारपेट वगैरह में यूज कर लेते हैं और अदर वुलन टेक्सटाइल्स में हम उसको यूज कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ द वूल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड quality of the wool. First of all, we are going to discuss about the properties of wool. The very first property of the wool is durability and resilience.
रेजिलियंस क्या होता है? बेसिकली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है मींस हम उसको कितना स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, दैट इज रेजिलियंस। ठीक है, हर एक फाइबर जो है वो कवर्ड है, उसके ऊपर एक फिल्मी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर, रेजिलियंस और फाइबर के ऊपर ये जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर के क्या करती हैं? थ्रेड को टियर एंड एब्रेजन से, टियरिंग एंड एब्रेजन से डिफेंड करती हैं। दिस मेक्स द wool durable. Now the next property is फाइबर एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। तो फाइबर जो है वो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वुल फाइबर। सो वुल इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर एब्जॉर्बेंसी, और एब्जॉर्बेंसी इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। द थर्ड प्रॉपर्टी इज फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या होता है? वूलन फाइबर्स जो होते हैं दे कैन बी मेटेड टुगेदर। मेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ हम उनको क्या कर सकते हैं? बुन सकते हैं, वीव कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फेल्टिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायबिलिटी। डायबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि फाइबर को क्या किया जाता है? डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए। हमने जो नेचुरल कलर्स पढ़े थे वो अभी तक हमारे पास 3 ही थे, एक था ब्राउन एंड ब्लैक, एक था व्हाइट। ठीक है, अब वुल जो अवेलेबल है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। इट मींस दैट वुल इज डाई विद द हेल्प ऑफ द डाइंग or the chemical substances. The next property is resistance to flame. We already studied कि फाइबर जो है, वुल जो है, that is very good property of having, they resist the flame. वो फ्लेम को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। Therefore it is not melting and the fumes that are generated, they are not the bad fumes. Sixth one is the chemical structure. केमिकल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो एनिमल फाइबर है, वुल जो है वो किससे ऑब्टेन होता है? एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो एनिमल का जो ये फाइबर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो है वो एक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये प्रोटीन जो है ये दैट इज बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो दैट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वुल। नाउ द लास्ट इज रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। अब जो फाइबर, देखो 2 तरीके की वुल हमने पढ़ी है, एक पढ़ी है हमने फाइन वुल, एक पढ़ी है हमने कोर्स वुल। जो फाइन वुल होती है दैट इज इजीली कंप्रेसिबल व्हाइल द कोर्स वुल इज नॉट इजीली कंप्रेसिबल। तो यहां पर मैंने रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन भी बता दिया। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द quality of the wool. Next is quality of the wool. The most precious wool is the merino wool. Merino wool is of high quality and very finest texture, and these are yielded by the ships which are having the long, straight and soft hairs. Mainly these are yielded by the hoggets, comes from hoggets. Hoggets are those young ones which are not yet sheared. Means hoggets वो ships हैं या young ones हैं ships के जिनको first time shear किया जाता है। ठीक है, तो they are having the long, straight and soft hair, and the merino wool come from those ships. Some sheep eat meat also. तो meat eating ships जो होती हैं वो उनके जो hairs होते हैं they are rough. During the growth of the ship की ग्रोथ के टाइम पे जो अनहेल्दी कंडीशंस होती हैं वो हेयर्स को क्या बना देती हैं? रफ बना देती हैं। हेयर्स अगर रफ होंगे तो उनसे जो वुल जनरेट होगी दैट इज ऑल्सो कोर्सर और रफ इन नेचर। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स which determine the quality of the wool. The first one is the fiber diameter. Fiber diameter is the end-to-end length of the hair of the cut surface of a hair. कि एंड टू एंड जो है हेयर की लेंथ जो होगी that is known as fiber diameter. Crimp is how many times the fiber is bent for a particular length.
एक फाइबर को कितने टाइम्स जो है वो बेंड किया गया एक पर्टिकुलर लेंथ बनाने के लिए, दैट इज नोन एज क्रिम्प. Yield is how much wool is obtained from the raw wool. स्कोरिंग के बाद में, स्कोरिंग हमारा कौन सा स्टेप था? सेकंड स्टेप था. उस सेकंड स्टेप के बाद में रॉ वूल से कितना वूल जो है वो ऑब्टेन किया गया, दैट इज बेसिकली द yield. Next one is the stipple. Stipple is a clump of wool formed naturally. And the last factor that determine the quality of the wool is stipple strength. Stipple strength is the energy needed to snap a specific stipple thickness. एक stipple thickness को, स्पेसिफिक स्टेपल थिकनेस को ऑब्टेन करने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, that is basically known as stipple strength. This is all about the processing of the wool. The topic is over for today. Still, if you are facing any difficulty in this, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.